Hello students, welcome to my channel Explore Organic Chemistry with Anjali for BSc and MSc students. In this lecture, I am going to explain the pi molecular orbital diagram of the allylic system. So this is the most important system that we are going to use in the sigmatropic reactions. That's why it's very important that how to construct the molecular orbital diagram for the allylic system. Now, up till now, we have seen the various molecules. Those are the ethylene molecules. We have seen the ethylene molecules where there are two molecular orbitals and those are even. That we have seen in the last lecture, in our previous lectures. So, important thing is you must know that we have already seen the molecular orbital diagrams for the even number of carbon atoms. The another example I can quote over here that 1,3-butadiene, 1,3-butadiene. Here the number of molecular orbitals are also even and those are 4 molecular orbitals. Now here let us see first what is the allylic system. Allylic system is nothing but the odd carbon system. Please remember this is a all carbon system. And what are the allylic carbons? So let me draw an example. C double bond C. So this system is called as allylic system. This system is called as allylic system. So what are the features of this allylic system? Allylic system has the alpha carbon which is sp3 carbon atom. First alpha carbon is the sp3 and this will be the sp2. sp2 carbon atom is connected with the sp3 carbon atom. So we can have the double bond system is connected with the one sp3 carbon atom. So this system is called as allylic system. And what is vinyl system? Vinyl system is C double bond C. So this can be your vinyl system. This will be your vinyl system. Now let us see the various examples of the allylic system. Now here the allylic systems can be allylic carbon atoms can be written as, so here I can draw, so they can be a carbocation, they can be a carbanion and they can be the free radicals. They can be the free radicals. If number of carbon atoms or if number of electrons, we can see over here the number of electrons I can mention that there are two electrons. So how many electrons are involved in the system? There are two electrons. There are two electrons. Now here another system we can see that how many electrons are involved in the carbanion. So here there are two electrons and minus charge means there are two more electrons. So there are four electrons involved in the system. Here also there are two electrons and this one is the third one. So there are three electrons. Now let us see the rules which are governing the how to draw molecular orbitals. So there are some rules we can put over here. So what are those rules? The rules are, let us see one by one. The rule number one is, what is rule number one? If the odd atomic numbers are present in the molecule, then it gives the same number of molecular orbitals. So if odd number of atomic orbitals are present in the molecule or they combine gives same number of odd molecular orbitals.
all molecular orbitals. This is the rule number 1. Rule number 2 is, now out of these molecular orbitals, one will be bonding, another will be anti-bonding, and middle one. Now here there are, we can see that how many carbon atoms are present in the system. Here the number of carbon atoms are 3. Number of carbon atoms are 3. So molecular orbitals also 3 as rule number 1. What is the rule number 2? Rule number 2 says that out of these 3 molecular orbitals, one molecular orbital will be a bonding molecular orbital. The middle one is the non-bonding orbitals, non-bonding, and the third one is the, or you can say that the uppermost molecular orbital will be a anti-bonding molecular orbital. This is how we can distribute the bonding and anti-bonding and non-bonding. So for example, here I can draw the energy levels. So here there are 3 carbon atoms, so there are 3 molecular orbitals, there are 3 levels. So the level, this is a psi 1, suppose this is psi 2 and this is psi 3. So with the example I can quote over here. So this psi 1 is the lowest one. This is a bonding molecular orbital. You can say that this is a bonding molecular orbital. The second one is the non-bonding. This is a little bit congested, but anyway, the second one is the non-bonding, and the third one is the anti-bonding. So you can draw for the 5 carbon atoms. There are 5 levels. 1, 2, 3. 1, 2 will be the bonding, 3 will be anti-bonding, and 4, 5 will be 3 will be non-bonding, and 4, 5 will be anti-bonding. So likewise you can identify the number of bonding orbitals, non-bonding orbitals, and the anti-bonding orbitals. Now here what is the rule number 3? Rule number 3 says that out of all odd molecular orbitals, half are bonding. Now how will you distribute? So half are bonding molecular orbitals, half are bonding molecular orbitals, half are anti-bonding and the middle one is the non-bonding. Now for example, if there are 5 carbon atoms, 5 carbon atom system, मोलिकुलर ऑर्बिटल कितने रहने वाले हैं? मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेंगे 5, राइट. तो अभी इसको ड्रॉ करना है. तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स अगर आपके 5 रहेंगे तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? So half means you have to consider the middle one first, right? So this will be your psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5. So psi 1 and psi 2 are bonding. These two are bonding. This one is the non-bonding, and rest of the things will be anti-bonding. So this is your rule number 3, that identify the number of bonding as well as anti-bonding one. Then the fourth most important rule is, if
non-bonding or in the for non-bonding orbitals, for non-bonding orbitals, molecular orbitals. Now here whenever we draw the molecular orbital, there is the important role plays over here that the number of nodes. नंबर ऑफ नोड्स उसमें कैसे प्लेस करने हैं वो मैंने आपको लास्ट मेरे 2 लेक्चर्स में आपको बताया है कि नंबर ऑफ आफ्टर ड्राइंग द ऑर्बिटल्स आफ्टर ड्राइंग द लोब्स हाउ यू कैन पुट द बिकॉज नंबर ऑफ नोड्स पुटअप करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब भी हम कोई मॉलिकुलर ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर ऑड नंबर सिस्टम है तो नॉन बॉन्डिंग को हम कैसे नोड असाइन करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो फॉर नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑल नोड्स देखो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल नोड्स विल पास थ्रू, all nodes will pass through the carbon atom, pass through the carbon atom। अभी तक हमने क्या देखा है कि हमने इन बिटवीन द टू कार्बन एटम्स हमने नोड को पास किया है, लेकिन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो रहेगा। नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में नोड्स अगर होंगे तो वो सारे के सारे नोड्स कहाँ से पास होंगे, they will pass through the lobes, not in between the lobes. So all nodes will pass through the carbon atoms। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अगर 3 मेंबर्ड चेन है तो इसमें जाहिर है इस ये जो रहेगा हमारा 3 मेंबर्ड अगर रहेगा तो हमारा साई 2 रहेगा नॉन बॉन्डिंग, साई 2 रहेगा नॉन बॉन्डिंग क्योंकि ये मिडिल वन आ रहा है। देखो इसमें हमने हमारा साई 2 जो सिस्टम है वो नॉन बॉन्डिंग है, तो नॉन बॉन्डिंग को अगर हमें नोड पुटअप करना है तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब देखो साई 2 ये इवन है तो हमारे जो अपोजिट लोब्स हमेशा ये ओल्ड सिस्टम्स का ही चलेगा, जो इवन सिस्टम में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उसी हिसाब से चलेगा कि अगर ये इवन है तो हमारा टर्मिनल लोब्स जो हमारे रहने वाले हैं वो अपोजिट फेज में रहेंगे, और ये जो सिस्टम है ये पास होगा यहाँ से, ये नोड जो पास होगा यहाँ से। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से रिवाइज आपके सामने रखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो लोब है ना वो मैंने निकाल दिया है, मैंने सिर्फ इसकी जगह एक डॉट लगा दिया है, एक नोड लगा दिया है। तो ये रहेगा तुम्हारा साई 2 इन कार्बन सिस्टम 3 कार्बन सिस्टम जिसमें आपके मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स रहेंगे 3। तो ये रहेगा तुम्हारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 रहेगा हमारा अगर फॉर अदर इवन मॉलिकुलर, अब इसके अलावा भी हमारे पास ऑर्बिटल्स रहेंगे, साई 1 है, साई 2 है, अगर हायर सिस्टम रहेगी तो इसके नोड्स कैसे हमें पुटअप करने हैं ये भी यहाँ पर रूल में बताया गया है। सो फॉर इवन नंबर ऑफ नोड्स, इवन नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स अदर देन, देखो इवन है तो साई 2 साई 3 सॉरी it will not be psi 3, it will be a psi 4, it will be a psi 4, so it will be a psi 4 और psi 6 likewise। अगर ऐसे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हमारे पास है एक्सेप्ट नॉन बॉन्डिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट नॉन बॉन्डिंग, अगर ये हमारे पास है तो इसमें हम नोड्स कैसे पुटअप करेंगे। द फर्स्ट नोड विल पास थ्रू द कार्बन एटम, द फर्स्ट विल बी पासिंग थ्रू द कार्बन एटम। देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, सो फर्स्ट नोड passes through the carbon atom, whereas rest of the nodes
rest of the nodes pass through the in between the carbon atoms. सो एग्जाम्पल के साथ हम चेक करेंगे कि इसको हम कैसे ड्रॉ करें. राइट, सो रेस्ट ऑफ द नोड्स विल पास थ्रू इन बिटवीन द कार्बन एटम्स. प्लीज रिमेंबर, इन बिटवीन द कार्बन एटम्स. नो फॉर एग्जाम्पल हम दूसरा सिस्टम लेते हैं जहाँ पर हम लोग ये वाला सिस्टम हम लोग थोड़ा चेक करते हैं इसमें कि इसमें हमारा थोड़ा हायर सिस्टम चेक करेंगे कि हम लोग साई 2 ले लेते हैं या फिर हम साई 4 ले लेंगे. साई 4 ले लेते हैं. साई 4 देखो 5 कार्बन है तो 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो है ना साई 4 का सिस्टम अप्लाई किया हुआ है, लेकिन कार्बन एटम्स जो है हमारे वो 5 ही है, तो हमारे लोब्स भी रहेंगे 5. कुछ इस प्रकार से 5 लोब्स रहेंगे. अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि साई 4 जो है आपका जो है ईवन है. ईवन में आपको जो बॉन्ड है, सॉरी आपके जो फेजेस है वो आपके अपोजिट फेजेस रहते हैं. तो ये मैंने पहले अप्लाई कर दिया है. नोड्स कितने रहने वाले हैं इसमें n-1 के हिसाब से, n-1 के हिसाब से नोड्स रहेंगे 3. 4-1, सो इट विल बी नंबर ऑफ नोड्स विल बी 3. अब 3 नोड्स है, इसमें से एक नोड जो जाने वाला है हमारा वो जाएगा फर्स्ट नोड पासेस थ्रू द कार्बन एटम एंड रेस्ट ऑफ द 3 विल पासेस थ्रू द. तो अभी मैं अगर सिमेट्री की बात करती हूँ, अगर मैं बैलेंस की बात करती हूँ, अगर मुझे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बैलेंस करना है तो मुझे सेंटर से ही मेरा नोड पास करना होगा और बाकी के जो नोड से, अब देखो सेंटर से नोड पास हो गया, इसका मतलब ये हुआ. इसको मैं रीड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ और आपको बताती हूँ कि देखो मैंने ना ये सेंटर से मैंने हटा दिया है एक लोब, जैसे मैंने बाकी इसमें किया था. आपके ये स्ट्रक्चर आप रेफ़र कर सकते हो. तो देखो मैंने सेंटर से ना लोब को हटा दिया है और वहाँ पर मैंने डाल दिया है. और ये स्टेटमेंट आप चेक करो कि रेस्ट ऑफ द नोड्स पास थ्रू इन बिटवीन द कार्बन एटम. अब देखो इन बिटवीन द कार्बन एटम है, नोड और कार्बन एटम के बीच में नहीं है, तो हमें ये जो सिनेरियो दिख रहा है तो ये 2, तो इस प्रकार से मेरे 3 नोड्स भी बन जाते हैं. और अगर मैं इसके फेस की बात करती हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इवन है तो हमारे अपोजिट लोब्स जो रहेंगे या टर्मिनल लोब्स रहेंगे वो डिफरेंट फेजेस में रहेंगे. अब देखिए ये दोनों के बीच में जो है ना, ये दोनों के बीच में मैंने नोड लगा दिया है, तो जाहिर है इनके लोब्स भी अपोजिट इसमें रहेंगे. ये दोनों के बीच में जो है ना नोड्स बना हुआ है, तो इनके बीच में भी कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है. सॉरी, ये कुछ मैंने गलत ड्रॉ कर दिया है. सो यहाँ पर भी अपोजिट देखो, यहीं के यहीं मेरे भी हाथ से गलती हो सकती है, तो बी कॉशियस व्हेन एवर यू ड्रॉ द फेजेस. तो यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से आपको बता दिया है. अब बात करते हैं कि इवन नंबर है तो आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे किस प्रकार से, और आपके जो ऑड नंबर का सिस्टम रहेगा वो किस प्रकार से आपको डील करना है. सो फॉर ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फॉर एग्जांपल साई 1 को आपको कंसिडर नहीं करना है बिकॉज साई 1 में कोई नोड्स नहीं होते हैं, तो आपको साई 1 को कंसिडर करना ही नहीं है इन एनी वे. तो ये आपका रहेगा सिस्टम में साई 3, साई 5, साई 7. तो अगर ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे, इन दैट केस all nodes passes through the, they will pass in between the carbon atoms, in between the carbon atoms. यही 5 सिस्टम का ना साई 5 का हम एग्जाम्पल लेते हैं.
psi 5 में देखते हैं कि कितना 1 2 3 4 एंड 5। देखो psi 5 जो है हमारा हाईएस्ट लेवल है, और हमें पता है जब हाईएस्ट लेवल होता है तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो अपोजिट फेज में होते हैं। सो इनके बीच में मैं 4 नोड्स लगा दूंगी, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर आने वाले हैं 4। नंबर ऑफ नोड्स n-1 के हिसाब से 5-1 रहेंगे, सो दैट विल बी 4। तो इस प्रकार से मैंने ये 4 नोड्स यहाँ पर पुटअप कर दिए हैं, जो आप इसको रेफ़र कर सकते हो। सो दीज आर दी different nodes I have put over here. So these are the different nodes 2, 3 and 4. Another color I should use. Okay, so these are the 4 nodes 1, 2, 3 and 4. Right, now let us see the apply all these rules to the and explain the various स्ट्रक्चर्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी 3 मेंबर्ड का ही लेती हूँ, जिसमें मेरे पास जो है एक है कार्बोकटायन। ठीक है, अब कार्बोकटायन की हम बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देख लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने रहेंगे? इसके रहेंगे 3, तो इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी रहेंगे 3। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसमें, जहाँ पर मुझे 3 ही लोब्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3 ही कार्बन आइटम्स है। तो कुछ इस प्रकार से पहले मैंने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ, अब मैं इसकी इंफॉर्मेशन फिल करूँगी। ऑलराइट, अब देखो इसमें आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके मूव करेंगे, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपके कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका कैसा रहेगा, कौन से इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो ही चीज़ आपको बतानी होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमेशा कॉन्जुगेशन में आपको मिलते हैं, तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अभी हमारे पास है। तो जाहिर है यहाँ पर जो है मेरे पास 3 लेवल्स है ना, कार्बन एटम्स 3 है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कुछ इस प्रकार से फिल कर दूँगी। So this is the electronic configuration and I have put various electrons in the various levels. ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके फेजेस हम एंड नोड्स ड्रॉ करते हैं। अब इसको मैंने कर दिया है psi 1, psi 2 एंड psi 3। ये 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। नोड्स की बात करते हैं, नोड्स कह रहा है n-1 रहेगा। तो यहाँ पर मेरा psi 1 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे 0, यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे 1 एंड यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स रहेंगे 2। ठीक है, अब इसको हम फिल करते हैं, हम फेजेस में डालेंगे। अब यहाँ पर 0 नोड्स है, तो जाहिर है मेरे सारे ऑर्बिटल्स, मेरे सारे लोब्स जो रहेंगे वो इन फेज में रहेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये मेरा बॉन्डिंग रहेगा, जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था। ये मेरा नॉन बॉन्डिंग रहेगा और ये मेरा रहेगा एंटी बॉन्डिंग। ये मेरा रहेगा एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग में देखो, इसको मैं पहले से ही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाईएस्ट को कुछ इस प्रकार से अपोजिट में डाल दो, तो फिर ये अपने आप सेट होता है। लोएस्ट एंड हाईएस्ट विल बी वेरी इजी टू पुट द फेजेस। अब बात करते हैं psi 2 की, जो कि नॉन बॉन्डिंग भी है। तो नॉन बॉन्डिंग में नोड डालने का तरीका जो है वो कुछ इस प्रकार से हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि फॉर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑल नोड्स पास थ्रू द कार्बन एटम।
अब हमारे पास यहाँ पर एक ही नोड है, तो मैं कुछ इस प्रकार से सेंटर से इसको पास करूँगी और मैं अब क्योंकि ये मेरा जो साइड टू E1 है, तो मेरे टर्मिनल लोब्स रहेंगे अपोजिट फेज में रहेंगे। तो इस प्रकार से मैं इस साइड टू को कुछ आपके सामने इस प्रकार से भी लिख सकती हूँ। मैंने सेंटर का जो लोब है वो मैंने निकाल दिया है, जो आपको नोड रिप्रेजेंट करेगा। So my psi2 will be representing like this. I am representing this psi2 in this fashion, right? So whenever you draw, तो overall diagram की हम बात करते हैं, तो overall diagram जो रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर आप ऐसे भी ड्रॉ करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके नोड्स जो रहेंगे और फेजेस भी आपको बहुत ही केयरफुली पुटअप करना है। नाउ हियर, सो दिस इज़ हाउ मैंने इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस इज़ psi3, दिस इज़ psi2 एंड दिस इज़ psi1। ये मेरा रहेगा एंटी बॉन्डिंग, ये मेरा रहेगा नॉन बॉन्डिंग और ये रहेगा मेरा बॉन्डिंग। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू, क्योंकि देखो ये psi3 है मतलब ऑड है ना, नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसका नंबर है psi3। ये psi3 अगर ऑड है तो ऑल नोड्स विल बी पासेस इन बिटवीन द, देखो मैंने इन बिटवीन द टू कार्बन एटम्स इसको मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। सो दैट इज़ हाउ यू अप्लाई ऑल दीज रूल एंड यू कैन ईजिली, आप ये रूल्स को ही फॉलो करके आप अगर अच्छे से डायग्राम बनाएंगे तो आपको ईजी जाएगा। अब इसका हम देखो, हमने अलील कार्बोकटायन के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कार्बन कटायन, और यू कैन राइट इट एज अ कार्बोकटायन, जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे 2 है और यहाँ पर मैंने ये कुछ इस प्रकार से फिलअप कर दिए हैं। सो दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर बात करती हूँ तो देखिए मैंने इसको इस प्रकार से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, लेकिन फिर भी मुझे इसका भी होमो और ल्यूमो मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ये रहेगी आपकी ग्राउंड स्टेट की। जब आपका ग्राउंड स्टेट रहेगा तो रिएक्शन रहेगी आपकी थर्मली इंड्यूस्ड, प्लीज़ रिमेंबर। सो ये आपकी रहेगी थर्मली इंड्यूस्ड और रिएक्शन जो है वो आपको कंसिडर करना है। तो यहाँ पर आपका होमो रहेगा आपका psi1 और ल्यूमो रहेगा आपका psi2। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली एक्साइटेड बताते हैं या फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड रिएक्शन है अगर हो रही है, तो आपको क्या दिखाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से एक्साइट होके यहाँ जाएगा। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन व्हेन योर मॉलिक्यूल इज फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड। तो फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड की जब हम बात करते हैं तो हमारा होमो रहेगा, होमो क्या रहेगा हमारा, होमो रहेगा psi2, होमो रहेगा psi2 और ल्यूमो जो रहेगा हमारा psi3, ल्यूमो रहेगा psi3। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन दी allele कार्बोकटायन, यू कैन एक्सप्लेन दी allele कार्बोकटायन। अब बात कर, देखो ये जो चीज़ है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ना ये यही रहने वाले हैं, चाहे वो आप कार्बोकटायन लो या कार्बेनियन लो या फिर आप उसका फ्री रेडिकल लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो यही रहेंगे, सिर्फ हमारे होमो और ल्यूमो जो है वो थोड़ा चेंज होंगे।
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो मेरा यही रहने वाला है। तो मैं भी आपके सामने फ्री रेडिकल की बात करती हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे हमारे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये एक है, ये एक है और ये वाला है। तो देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो जाहिर है मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम अगर ड्रॉ करती हूँ तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3 है, तो मैं उसको इसका इस प्रकार से उसको मैं फिलअप करती हूँ। दिस इज़ माई psi 1, दिस इज़ माई psi 2, दिस इज़ माई psi 3। तो यहाँ पर जो है और ये रिएक्शन जो है ये है थर्मली अलाउड, यानी ग्राउंड स्टेट की बात मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको जब अलील रेडिकल की बात करते हैं, अलील रेडिकल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं और इसका होमो जो रहेगा आपका, होमो रहेगा ग्राउंड स्टेट का, वो रहेगा psi 2 एंड ल्यूमो जो रहेगा वो रहेगा आपका psi 3। यही रिएक्शन अगर हम फोटोकेमिकली एक्साइट करते हैं तो ये psi 2 का इलेक्ट्रॉन है वो psi 3 में जाएगा। सो अगेन आई एम ड्राइंग दिस, so this is psi 1, this is psi 2 and psi 3। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये psi 2 से psi 3 में जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। psi 1 का इसमें कोई भी रोल नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्थिति बन रही है। आपको होमो और ल्यूमो आपको यहाँ पर बताना होगा, होमो और ल्यूमो। अब देखें होमो आपका क्या है, होमो है आपका psi 3 और ल्यूमो क्या है, देर इज़ नो ल्यूमो, नॉट प्रेजेंट। देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इसमें से मिल रही है। अलील रेडिकल में ल्यूमो ही नहीं है, ओनली होमो इज प्रेजेंट। ऑलराइट, सो इसी प्रकार से हम कार्बेनियन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कार्बेनियन का भी होमो और ल्यूमो हम निकाल सकते हैं। तो इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ लेट अस सी द how you can draw the तो देखें मैंने अभी इस ये कार्बेनियन मैंने ड्रॉ कर दिया है। कार्बेनियन मतलब मेरे पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, माइनस चार्ज मीन्स देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास ऑलरेडी है। जैसे मैंने बताया कि मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है ये यही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो मेरा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। सो देखें आप, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और मेरे ऑर्बिटल्स भी psi 1, psi 2, psi 3 है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कुछ इस प्रकार से फिलअप करूँगी। तो ये मेरा ग्राउंड स्टेट का रहेगा। ग्राउंड स्टेट मतलब थर्मल ही है ना, थर्मल है। तो इसका मतलब मेरा होमो क्या रहेगा, होमो रहेगा मेरा psi 2 और मेरा ल्यूमो रहेगा psi 3। इसी को अगर मैं एक्साइटेशन स्टेट में देखती हूँ तो फिर से मैं करूँगी 3, जो मेरे psi 1, psi 2 और psi 3 रहेंगे। अब देखो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, तो मैं कुछ इस प्रकार से इसको शो कर सकती हूँ। अब देखते हैं कि भाई फोटोकेमिकली इंड्यूस्ड रिएक्शन में मेरा होमो क्या रहने वाला है, होमो रहने वाला है मेरा psi 3 और मेरा ल्यूमो तो मेरे पास है ही नहीं। सो नो ल्यूमो इज प्रेजेंट ओवर हियर, नो ल्यूमो is present here in the carbanion. So this is how you can explain for the other system also. So in the next lecture I will explain the 5-membered chain and the 7-membered chain. Thank you so much for watching this video. If you really like this video,
Please press the like button, subscribe the button, and share the video with your near and dear. Thank you so much.